अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैरियर इंसाइट्स विद फ़ज़ल में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान और कैरियर मेंटोर फ़ज़ल अकबर। आज के इस सेशन में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मिस्टर जहांज़ेब अमीन। ही इज़ ए सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन and a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan. He has more than 28 years of experience in this field, and currently he is serving as a senior partner at AF Ferguson & Co. Chartered Accountant, which is a member firm of PwC. As you know, AF Ferguson is the leading firm in Pakistan, and PwC is the second largest professional service provider organization worldwide. इसके अलावा जहांज़ेब अमीन साहब ICAP के बहुत सारी कमिटीज़ में बतौर मेंबर खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। ही हैज़ सर्व्ड एज ए चेयरमैन एंड सेक्रेटरी नॉर्दर्न रीजनल कमेटी ऑफ ICAP। अगर हम CA की बात करें, ही इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन दिस फील्ड। ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट CA प्रोफेशन एंड CA एजुकेशन। आज के इस सेशन में हम जहांज़ेब साहब से ज़्यादा रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करेंगे और हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप तशरीफ़ ले आए और हमारे रहनुमाई के लिए। प्लेजर बीइंग हियर। सर, मुख्तसर सा तारुफ मैंने कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारे नाजरीन को अपने इस CA जर्नी के हवाले से बताएं। आप किन मराहिल से गुज़र के इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं? थैंक यू सो मच, इट्स गुड टू बी विद यू। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रूट नहीं था, लाइक द कन्वेंशनल एज द rule book has been that I started my career from my graduation. I did BCom and then I went on to join the CA profession. I started with my articles, qualified, then destined my managerial role from assistant manager to manager and then senior manager. Thereafter I was admitted to the partner, and in total it's been more than 29 years in the service of the profession. The journey has been full of excitement and challenges, and God Almighty has been there to help me support. And Alhamdulillah, today I sit in front of you and just doing my responsibility, what we held from our seniors, that whosoever is coming in the profession, do the hand holding, and very happy to see that there are hundreds of chartered accountants who have qualified under me as a partner for them, or when I was a part of the visiting faculty, I had the pleasure of grooming more than 1,000 people only in Pindi and Islamabad. Gives me the pleasure to say with a high head to my seniors, to my mentors, that I have carried on the legacy of the profession in a very distinguished and respectable manner. वेरी नाइस सर। सर, चूँकि इस सेशन में हम कैरियर के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, तो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी को क्यों चुना? आप, अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है। आप डॉक्टर भी बन सकते थे, आप इंजीनियर भी बन सकते थे, किसी और प्रोफेशन में भी जा सकते थे। देन व्हाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी? It's a very relevant and pertinent question. I mean, like 30 years back when we came to the profession, उस वक़्त ये इशू ज़रूर था कि डॉक्टर इंजीनियर दैट यूज़ टू बी द प्रायोरिटी, और जितने उस वक़्त का जो इकोसिस्टम था, उस वक़्त O levels A levels भी इतना हमारे सिस्टम में इंट्रेंच्ड नहीं था। मैट्रिक और उसके बाद प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और FSC की बेसिस से मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। बट नॉनदलेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक रियलाइजेशन वगैरह वो आ रही थी कि बिजनेस स्टडीज़, सो MBA वाज अनदर फील्ड दैट केम इन, एंड व्हेन वी वर एक्सप्लोरिंग दोज ऑप्शंस at that point of time, this also came to our knowledge that the role of professional accountant is much bigger when it comes to the decision making and running the show and having an impact. So the idea was to take up the big challenge, and it was the right decision taken then, and alhamdulillah today, like 30 years down the lane, it is proving every day that it was the right decision then. जी सर, तो ये एक बेहतर डिसीजन था। सर, इस डिसीजन में आपका ख़ुद का किरदार था या आपके पेरेंट्स की वजह से आपने ये फील्ड चूज़ किया था? आपके पास वो गाइडेंस थी, वो इन्फॉर्मेशन थी आपके पास उसी टाइम पे? And the Holy Quran says Allah is the best of planners. So Yes, sir. that was something that has been the predominant factor throughout. If I look back at my journey, एक थोड़ा डिसीजन मेकिंग का चैलेंज मेरा ख्याल है ज़्यादा उस वक्त आया था जब FSC मैंने प्री इंजीनियरिंग में की, और उसके बाद मैंने BCom का फ़ैसला किया कि मैंने आगे बिज़नेस की लाइन में। उस वक्त तक मेरा माइंड ये नहीं था कि आगे मैंने CA करना है या
MBA की तरफ उस वक्त ज़्यादा मेरी इंक्लिनेशन थी. When I was in BCom at that point of time, this realization, understanding of CA, this came more to me, and then it was a rather easy decision to jump on from BCom to CA side. लेकिन मेजर टर्निंग पॉइंट FSC से बिजनेस स्टडीज़ की तरफ शिफ्ट करने का था कि प्री इंजीनियरिंग में FSC करके फिर BCom की तरफ आना. सर इस प्रोफेशन के हवाले से आजकल जो बच्चे आ रहे हैं CA में, अक्सर उनको मालूमात उनके पास नहीं होती और मिस गाइडेंस, मिस इन्फॉर्मेशंस. तो आप काइंडली गाइड कीजिएगा बच्चों को कि इस प्रोफेशन में आने के लिए कौन से क्वालिटीज़ चाहिए होते हैं. अब FSC या इंटरमीडिएट का बच्चा होता है, उसको इतना पता नहीं होता अपनी सलाहियतों का कि वो किस प्रोफेशन में एक्सेल कर सकता है. तो आपको क्या लगता है सर, इस स्टेज में किन सलाहियतों के साथ बच्चे हों तो फिर वो CA में आके एक्सेल कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं? जी, इट इज़ अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टुडेज हैपनिंग एंड चैलेंजिंग वर्ल्ड. If we look around, telecommunication and other connectivity tools, that has brought world very close. So the options, the choices that our young people have to make today, they are aware of very many things that are happening in the world. एक horizon broad है, and I personally feel कि जो आज की young generation है उसके लिए कैरियर की choices करना is more difficult because we race to meet a future which is continuously changing. Yes. Someone who is entering any profession, be it doctor, engineer, architect, lawyer or chartered accountancy, at the age of 21, 22, and by the time he retires at the age of 60, अगले 38-40 साल में दुनिया कितनी चेंज हो जाएगी, उसके लिए आज से ही प्रिपेयर्डनेस वगैरह वो करेगा, आज से ही चॉइस करेगा, तब आगे चीज़ें उसके लिए लाइक इट्स quite a global phenomena कि people have a mid-career crisis in mid-40s or early 50s, they are encountered with this dilemma. So it's very important कि career की जो choice है, जो decision making है, वो बहुत appropriately रखी जाए. आज का भी अगर हम ये देखें तो हमारे अपने पास यहाँ पे जिन लोगों ने CA में आने का फ़ैसला करना है, उनके पास O levels, A levels, FSC, FA के बाद ये ऑप्शंस हैं कि वो बिज़नेस स्टडीज़ में जाएं. कंप्यूटर साइंस एक जेनरिक ट्रेंड बन गया है कि जी जो कंप्यूटर IT, दैट इज़ द फ्यूचर. इंडीड दैट इज़ द फ्यूचर, बट दैट इज़ द फ्यूचर टू ऑगमेंट एवरी प्रोफेशन. मेडिकल साइंस की रेलेवेंस अपनी जगह पे रहेगी, लीगल सर्विसेज की साइंस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह पे रहेगी, अकाउंटिंग, कंप्यूटिंग, ऑडिटिंग, अकाउंटेबिलिटी, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह पे रहेगी. और इसको सिर्फ बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए टेक्नोलॉजी एक लाजमी जुज़ बन जाएगा. तो वो रेलेवेंस जौन सा है, वी all been knowing this thing that accountants are first one to enter, last one to leave any business. Nonetheless, इसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप अपना एक एप्टीट्यूड वगैरह, एक बेसिक ये चीज़ खुद असेस कर सकें कि आप किस हद तक इम्पैक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में, उसकी एक्सपेंशन में, उसके परफॉर्मेंस में किस हद तक इम्पैक्ट कर सकते हैं. बिकॉज व्हेन वी सी अराउंड दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल कन्वेंशन अब बुक कीपिंग का नहीं रहा. इट्स मोर ऑफ अ बिजनेस लीडर. यू वर्क अराउंड द बिजनेस एज ए होल, बिजनेस एज ए मॉडल. आपके प्रोक्योरमेंट साइकिल, आपके पेमेंट, रिसीवेबल, ट्रेजरी, कंट्रोल्स, स्ट्रैटेजी, ग्लोबल आउटरीच, क्रॉस बॉर्डर बिजनेस ट्रांजैक्शन, डीलिंग विद द रेगुलेटर्स, डीलिंग विद द मल्टीलैटरल एंड मल्टीनेशनल ट्रेड बॉडीज़, एक एक्सटेंडेड रोल है जिसकी वजह से यू get to play a very important role, you get higher responsibility, you get an opportunity to shape up the future of the organization. So if you are prepared, geared to take this role, you have an appetite and urge to lead from the front, then this is the profession for you. You should be eyeing it, and of course it is most relevant and pertinent to the continuous change in the happening world, which keep you relevant for very many years to come. बिल्कुल सर. सर इसको इस प्रोफेशन को हम इस तरह से देखें कि ये कितना रिवार्डिंग है, कितना प्रोमिसिंग है फॉर दोस हु आर कमिंग टू दिस प्रोफेशन. अब दूसरा अगर हम प्रोफेशन की बात करेंगे, वहाँ से बहुत सारे इश्यूज़ भी आ सकते हैं, बेरोज़गार भी हो सकते हैं, और ऑब्वियसली हर जगह ये इश्यूज़ होते हैं. तो जहाँ तक मैंने देखा है सोशल मोबिलिटी ये फास्टेस्ट रेट पे इसी प्रोफेशन में होता है. कोई भी बच्चा एक हम्बल बैकग्राउंड से आता है,
और वो अपने जो है ना एस्पायरेशंस का फुलफ़िल करने के लिए अगर सी में आ जाता है तो फिर वो जल्दी फुलफ़िल कर सकता है। तो आपने सर इस चीज़ को कैसा देखा है? मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक गरीब परवर प्रोफेशन है। आपकी बात सही है। देखिए, हमें किसी भी प्रोफेशन से ना मुवाजना करने में, rather than we look at the downsides or we find flaw in someone else, it's more appropriate that we play on our strengths. So if we look around that the way this profession has helped people, I mean people from all the varied backgrounds, they come in this profession from their different geographical terrain, ethnical values वगैरह जो उनके different areas वगैरह से वो belong करते हैं, ethnicity वगैरह से, they come in this profession and they have all risen to the top. And we have seen जितनी भी हमारे पास success stories वगैरह है, yes we can, if we compare on the yardstick of the starting salaries and the packages that are offered, indeed जो इस वक्त एक स्टार्टिंग सैलरी एक डॉक्टर इंजीनियर वगैरह की जो है उससे कहीं ज़्यादा स्टार्टिंग सैलरी अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ गेटिंग एट द मोमेंट. सेकेंडली एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रियलाइज दिस थिंग कि ये कोई डिग्री या सर्टिफिकेट या क्वालिफिकेशन उस तरह नहीं है, इट्स अ लाइफ स्टाइल. यू हैव टू कंडक्ट योर सेल्फ इन अ बेफिटिंग मैनर, इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर. एंड जो भी कोई प्रोफेशन हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आर्किटेक्ट हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, पोस्ट क्वालिफिकेशन 3-4 साल हमेशा लगते हैं अपने आप को एज अ ब्रांड इस्टेब्लिश करने के लिए. Once you nurture yourself into a professional, the market starts trusting in you, then automatically you become a magnet and the financial benefits and the social benefits, they start flowing to you. The people, they start putting their faith and trust in you and look forward to you for all the guidance in their financial decision making and other business expansion decision making. Likewise, इसमें फिर आपकी जिस एक सोसाइटी की क्लास में आपका उठना बैठना शुरू हो जाता है, द मूवर्स एंड शेकर्स, द डिसीजन मेकर्स, द पीपल हु हैव एन इम्पैक्ट ओवर द फेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, आपकी क्लास कम्प्लीटली चेंज हो जाती है. देन यू आर ए C-suite प्रोफेशनल एंड दैट इज़ वेयर द डिफरेंस इट स्टार्ट्स मूविंग अहेड फ्रॉम other professions and other qualifications. We, are in an era where it's a time for specialization. General qualification, basic qualification is not enough to sustain any professional. So this is a competitive edge. आज की कुछ मेहनत शुरू के 4-5 साल इन्वेस्ट किए हुए, it will going to reap good benefits for you for very many years to come.